सबसे पहले देखें जी, क्वेश्चन आपका मैन्युफैक्चरिंग काउंट का चैप्टर है हमारा, और डेफिनेटली वी हैव टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग काउंट एंड द इनकम स्टेटमेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन. तो Bart, a sole trader, provide the trial balance for the year ended 30th April 2012. सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, इन्वेंट्री दी हुई है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स ओपनिंग की, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस दी हुई है आपको. इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस जो है फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है. फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है. फैक्ट्री बिल्डिंग और फैक्ट्री मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन होगी दैट विल बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, बट इफ देयर इज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट it will be charged to the income statement. Insurance, general factory expenses, factory supervisor, supervision salary, that is also factory overheads, heat and light, administrative expenses, office salaries is basically comes in the income statement. Trade receivable, doubtful debts, trade payable, bank and capital. Inventory दी हुई है, closing inventory is given, raw material, work in progress and finished goods. Depreciation is provided on non-current asset at a rate of 20% per year using the reducing balance method. This question may reducing balance method is given, but if you just look at the question, there is no depreciation given for factory building. Reducing balance method means that you need to subtract previous year depreciation from the cost of asset and then you will charge depreciation on the remaining amount or on the net book value. लेकिन बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन पहले नहीं है तो कॉस्ट पे ही कैलकुलेट कर लेंगे either, because this is not mentioned in the question. The following expenses should be apportioned as follows. Insurance 70% फैक्ट्री में, 30% ऑफिस में जाएगा. हीट एंड लाइट 80% फैक्ट्री में, 20% ऑफिस में. On 30th April, indirect factory wages of 5,000 were unpaid. Their unpaid expenses they will be added in. Indirect factory wages में add कर देंगे. And insurance of 7,000 have been paid in advance. So that will be subtracted from insurance because prepaid expenses needs to be subtracted, and then it is going to be distributed 70% to factory and 30% to office. Provision for doubtful debts to be maintained at 3% of trade receivables. तो 3% ट्रेड रिसीवेबल का आपने provision for doubtful debts को मेंटेन करना है. सबसे पहले हमने क्या बनाना है क्वेश्चन में? Obviously we have to prepare manufacturing account. अकाउंट हम बनाई लीजिए अपना, साइन बना लेते हैं. सर वो आपने अभी तक मुझे वैसे सेंड नहीं किया पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग. मैं वेट कर रहा था. ठीक है, मैं I will send the both today, no problem, because I was expecting that maybe you are not in need of that as we have discussed the lecture thoroughly, but okay, I don't have any problem in lectures. भेज दूंगा. नहीं सर वो मतलब याद तो है सारा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पढ़ा था, लेकिन अगर दोबारा हो तो बंदा एक दो बार रिवाइज कर लेता है तो ठीक. Exactly, that would make sense. चलो रिवीजन हो जाती है. The account is going to start with direct material, and start में we used to write raw material opening inventory. Raw material opening, let's see in the question that where is raw material opening is given. It is given at the start of the question. Inventory of raw material opening is 20,000. I will write 20,000 over here. I will add करेंगे इसमें add purchase of raw material. There is going to be a purchase return, it will be subtracted. अगर होती तो obviously I need to subtract it. And if there is carriage inward in the question, it will be added in purchases. But I think so both the things are not given. Purchase return are given. So the purchase of raw material is 2,38,000. I will subtract purchase return of 10,000. So I will write over here 2,38,000 minus 10,000. ये कितना आ जाएगा आपका? 2,28,000. इसको हम क्या कर लेंगे जी? ऐड कर लेंगे. बस आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज. If you don't want to write, सर क्लोजिंग माइनस नहीं करना जी. I will just going to write the name of the whatever the total will be for this. Oh.
हो जाएगा 248 नहीं सॉरी 220 है ना 248,000 and then I will subtract less raw material closing obviously, and raw material closing is given in the question, that is 56,000. वो I will subtract it. वो माइनस कर देंगे जी. देखिए क्या आता है आंसर, बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम. मैं बिजी हूँ जी. 2,48,000 में से हम माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल क्लोजिंग. कितना आ जाएगा जी आपका? 6,000 आ जाएगा 1,92,000. वो ये हम लिखेंगे जी 1,92,000 दैट इज मटेरियल यूज्ड. मटेरियल यूज्ड और मटेरियल कंज्यूम्ड और मटेरियल पुट इन प्रोसेस भी कह सकते हैं. इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस को मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं. ठीक है जी. फैक्ट्री वेजेस भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं और प्रोडक्शन वेजेस भी कहते हैं और फैक्ट्री ऑपरेटिव वेजेस भी कहते हैं. देखते हैं डायरेक्ट वेजेस कितनी दी हुई है क्वेश्चन में. डायरेक्ट वेजेस आपको दी हुई है क्वेश्चन में, अगर आप गौर करें ऊपर चलते हैं. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से दी हुई है 2,65,000. ओके, आई एम गोइंग टू राइट 2,65,000 here with direct wages. इसमें हम ऐड करते हैं फिर प्राइम सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर कोई दिए हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड होते हैं. मैंने बताया था रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फी. बट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल ऐड इट. बिकॉज ये वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका टोटल हम कर लेंगे. दैट विल बी योर प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट देखते हैं 1,92,000 प्लस 2,65,000 becomes 4,57,000. ठीक है जी. इसमें ऐड कर लेंगे जी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स. दैट विल बी द हेडिंग एक्चुअली. कामली इसकी हम हेडिंग देंगे क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें आनी हैं जो कि हमने लिखनी है, जो which will be a part of factory overheads. सबसे पहले क्या आती है आपकी, स्टार्ट द क्वेश्चन. इंडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 46,000. सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में सिर्फ फैक्ट्री की चीजें आएंगी ना, ऑफिस रिलेटेड तो कोई चीज नहीं आएगी? जी बिल्कुल यस यू आर राइट. फैक्ट्री वेजेस इंक्लूड्स 46,000 एंड देयर आर सब accrued also. कह रहे हैं indirect factory wages accrued are 5,000. so that needed to be added into indirect factory wages. accrued add हो जाता है आपका, unpaid है, outstanding है, that will be added in factory wages with an amount of 46,500. so it will become 51,000. then next thing which will come in the factory overheads is insurance. So insurance needs to be apportioned also, because insurance is not only included in factory overheads, it needs to be distributed. Insurance is given in the question with an amount of 14,000. So I will write 14,000. Because insurance is prepaid, 7,000 needs to be subtracted from this. How come, sir? Look at the question. Fourth point, on 30th April, there were indirect factory wages of 5,000 but unpaid, and insurance of 7,000 had been paid in advance. So that insurance which is paid in advance needs to be subtracted. So 7,000 क्या कर देंगे हम? Minus कर देंगे 7,000. 7,000 needs to be subtracted, and then 70% of 7,000 will go in the factory overheads, and 30% will go in the office expenses and in the income statement. So 14,000 का minus 7,000 का 70% will go in factory overheads, which will come 4,900.
Next is after insurance, general factory expenses. General factory expenses are given in the question. There is no apportionment for that. And general factory expenses are given 6,000. Right over here. Then factory supervisors supervision salary. Supervision salary is how much? That is 15,000. Next, after factory supervision salary, that is heat and light. In heat and light, there is needs to be a portion. It is given in the question. Heat and light needs to be a portion. Here it is written. It is written down. It is like 80% goes to factory and 20% goes to office. The amount of heat and light is how much? I didn't check it out. 6,000. 80% of 6,000 will move to factory and will be a part of the factory cost, which is 4,800. The remaining will go to the office expense. Next, administrative expenses 33,000. There is no adjustment regarding admin expenses. 33,000 I will write over here. Then office salaries are given 55,000. वो तो नहीं आएंगे इधर क्योंकि वो एक्सपेंसेस का हिस्सा है. एडमिन एक्सपेंसेस भी यहाँ पे नहीं आने थे, राइट? बिकॉज एडमिन एक्सपेंसेस इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. यू आर राइट. ये नहीं, लेकिन सर एडमिन ऑफिस में आते हैं ना. एडमिन ऑफिस में ही होते हैं क्योंकि अगर फैक्ट्री का होगा तो फैक्ट्री के नाम से आएगा. लेकिन फैक्ट्री में भी तो होते हैं एडमिन. If only admin expenses are given, we believe that they are related to office. They are related to the staff which are working in office. Okay. Next. Okay. Any other thing which comes more in the factory? Yes, that is depreciation. So depreciation on building, we will believe that that is factory building, that is 6 lakh. And depreciation rate is 20%. So I will write depreciation on factory building. That is 6 lakh, 20%, that is 1,20,000. Then depreciation on factory machinery. We are using reducing balance method. Depreciation on factory machinery. Machinery is given 2,60,000 and the depreciation which has already been incurred on machinery is 2,60,000 minus 60,000 because we are using diminishing balance method. The remaining amount is 2 lakh and 20% of 2 lakh is 40,000. So here you will write like, if you want to write over here, show that also. And if you don't want to show it, is fine. I have a 20%. That's 40,000. That's it. These are the all expenses which comes in factory overhead because there is depreciation of office equipment. The office equipment is a part of office expenses. It will not come in factory overheads. If you go for the total of this. But sir, हमने मुझे समझ आता है हीट एंड लाइट का किया, फैक्ट्री मैच का किया, ये हमने बिल्डिंग का क्यों किया? बिल्डिंग का क्या नहीं किया? बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन क्यों की है? उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऑल उसमें कहा था डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन नॉन करंट एसेट एट रेट ऑफ 20% पर ईयर यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो बिल्डिंग पर आप ले ना ले नहीं, वो तो किया था, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्यों किया ये पूछा. फैक्ट्री बिल्डिंग है ना बेटा, इसलिए फैक्ट्री बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, लिखा हुआ है. ओके फैक्ट्री बिल्डिंग. ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी. टोटल कर लेंगे इसका हम एक्सपेंसेस का. 51,000 plus 4,900 plus 6,000 plus 15,000 plus 4,800
1,20,000 और प्लस 40,000 तो 2,41,700 आपका आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 2,41,700। इसमें हम ऐड कर देंगे 4,57,000 टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आ जाएगी 6,98,700 6,98,700। इसमें बेटा हम ऐड कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग लेस कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। जी ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है 52,000 की, here it is written, and closing is 58,000। 52,000 जो है वो डेफिनेटली हमारा एक तरह से ऐड हो रहा है, 58,000 जो है वो हमारा एक तरह से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नेट इफेक्ट आपका 6,000 का आ जाएगा नेगेटिव का, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आप माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आंसर जो है वो आ जाएगा। दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Cost of production means that this will go to the income statement for further solution। ये आपका आ जाएगा 6,38,700। ठीक है जी, सॉरी 6,92,700। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो अपना कंप्लीट जो है वो कर दिए। इसको आप लिख लें और यू वांट टू टेक द पिक यू कैन टेक द पिक आल्सो। ये हमने कंप्लीट कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसके थ्रू आपने आगे नेक्स्ट हमने जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। चलते हैं इससे आगे। एनी प्रॉब्लम यू टिल हियर? जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकल आई, वर्क इन प्रोग्रेस तक हमने निकाल लिया जैसा आपने पिछले में कहा था। अब इनकम स्टेटमेंट हम फिनिश गुड्स बनाने के लिए करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते नहीं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कि उसके लिए अलग इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है? बिकॉज फिनिश गुड्स इज ए पार्ट ऑफ यू नो, जहां से आउटलेट इज ए पार्ट ऑफ आउटलेट, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री। As soon as we got the goods, we used to send it to the outlet. That will be part of the income statement rather than part of manufacturing account. वैसे भी जो मैंने बताया था, जो पहले पढ़ते रहे इनकम स्टेटमेंट, उसमें जो फिनिश गुड्स होती थी वो मैन्युफैक्चरिंग की ही होती थी एक्चुअली। नॉर्मल ओपनिंग लिखी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। नॉर्मल क्लोजिंग इन्वेंटरी का क्वेश्चन में लिखी हुई है अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, other than this topic, that is the inventory of finished goods actually। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है देखें। अच्छा, क्वेश्चन में उसने इनकम स्टेटमेंट बनाने का बनाते हैं, रिक्वायरमेंट लिखी नहीं हुई लेकिन हमें पता है कि हमें बनानी है। We'll start from sales. I have to look at sales revenue is given, it is given 7,99,000। सेल्स आ जाएंगे आपकी जी 7,99,000। लेस कर देंगे इसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आपकी क्या आती है? यस यू आर राइट, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसमें हम ऐड कर लेंगे परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इफ इट इज नॉट गिवन देन आई विल ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमें कितनी दी हुई क्वेश्चन में। आई हैव टू मूव बैक टू द क्वेश्चन। फिनिश्ड गुड्स दिए हुए 78,000 की, 78,000 हमारी दी हुई है ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐड कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने फाइंड आउट की है, जो हमने निकाली है एक्चुअली। यहाँ से कितनी निकाली है जी? 6,92,700। हम ऐड कर देंगे जी 6,92,700। वो
लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स जो कि हमें नीचे दी हुई है जी, कितने की 72,000। इट विल कम द नेगेटिव फिगर, ये हम माइनस कर देंगे जी, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। यू कैन से ग्रॉस प्रॉफिट वॉल्यूम में से जीपी भी कह सकते हैं आप इसको, ये निकाल लेते हैं कि हम कितनी हमारे पास आएगी। आई वांट यू टू गो फॉर द कैलकुलेशन विद मी, बस दैट विल हेल्प यू आउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 698,700। ये माइनस कर देंगे सेल्स में से 100,300 आपका जीपी आ जाएगा। इसमें आपको पता है कि अदर इनकम हम ऐड कर देते हैं, डिस्काउंट रिसीव हो जाए या कोई और इनकम हो तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन अगर ना दी हो तो डेफिनेटली आप इसमें से एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर दें। एक्सपेंसेस में आपको सबसे पहले कौन से आएंगे, एक तो बेटा जो आपने वहां पे लिखे थे हीट एंड लाइट, दैट विल कम इन द एक्सपेंसेस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना आपने, और दूसरा इंश्योरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होके आने। सर कैसे, ये देखें इंश्योरेंस रिटर्न लाइट जो है 70% हमारा गया था फैक्ट्री पे और 30% जाएगा इंश्योरेंस का ऑफिस में। इंश्योरेंस हमें कितने की दी हुई थी, प्रीपेड माइनस करने के बाद वो थी 7,000 की। 7,000 का 30% वो आएगा 2,100, वो आपका इसमें आ जाएगा। इस तरह हीट एंड लाइट जो है उसके कितने परसेंट है, 20% है। हीट एंड लाइट कितने के दिया हुआ था ऊपर क्वेश्चन में, 6,000 का। 6,000 का 20% जो है वो ऑफिस में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपने, ये आपका आ जाएगा 1,200। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सपेंसेस देखते हैं कि मजीद कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि इसमें आ सकती हैं या इस पार्ट। एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगी, चलें वही निकाल लेते हैं पहले, व्हाई नॉट। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स निकाल लेते हैं हम। इसमें इंक्रीज इन प्रोविजन भी हो सकती है, याद रखिएगा, और डिक्रीज इन प्रोविजन भी हो सकती है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोविजन इंक्रीज ही होगी, अदरवाइज मुझे जीपी में ऐड करनी पड़ेगी डिक्रीज इन प्रोविजन। तो प्रोविजन हमें कितनी है, 3% निकालनी है आपने, और पहले से प्रोविजन भी दी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दी हुई है 40,000 के, 40,000 पे निकालें आप, 3% कितना आता है, आपकी आ रही है 1,200। आपकी आपको प्रोविजन कितनी दी हुई है, 2,000। उसका मतलब है आपको प्रोविजन डिक्रीज करनी पड़ेगी कितने से, 800 से। बेटा प्रोविजन आपकी निकलती है कितनी, 2,000 दी हुई आपको, जबकि प्रोविजन हमें कितनी चाहिए, 1,200। प्रोविजन आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे डिक्रीज इन प्रोविजन, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 800 से, इधर हम ऐड कर देंगे। इसका टोटल भी कर लेंगे, क्योंकि प्रोविजन इंक्रीज नहीं हो रही, प्रोविजन डिक्रीज हो रही है। 101100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपका आ जाता है जी इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्डिंग की और मशीनरी की तो जाएगी इसमें एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री में, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जाएगी आपकी किसमें, ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर। तो 1,48,000 माइनस 44,000, और इससे कितने परसेंट है, 20%, तो आ जाएगा 20,800 आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, 20,800। उसके बाद इसमें आपके आते हैं जी एडमिन एक्सपेंसेस, वो लिखेंगे आप, देखते हैं वो कितने हैं, वो 33,000 कितने मेरा ख्याल है, अभी मैं देख भी लेता हूँ, इसे लेते हैं। ये लिखे हुए एडमिन एक्सपेंसेस 33,000, और ऑफिस सैलरीज दी हुई है आपको, वो कितने की हैं आपकी, 55,000 की। ऑफिस सैलरीज भी दी हुई है कितने की, 55,000 की। ऑफिस सैलरीज में लिख लूंगा। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम मैं ज्यादातर फेस करता हूँ जब एक इनकम स्टेटमेंट या फिर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डालते वक्त जो इंफॉर्मेशन होती है, मतलब लाइक
अब मैं एक इंफॉर्मेशन से उसका आंसर लिख लेता हूँ, बाद में एज आई एम गोइंग थ्रू द क्वेश्चन अगेन एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो उसमें ऐड होनी होती है प्रीवियस इंफॉर्मेशन में, तो उसकी वजह से मैं वो टाइम वेस्ट हो जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो इसके कोई हिंट देंगे? इसका हिंट ये है कि तो मैं आप क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है जिसकी हम्म, वजह से आप इस क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन में ये चीजों को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है तो उसका नॉर्मली क्या कहते हैं पैटर्न ये होता है कि अगर आपने एक इफेक्ट कर दिया है तो उसको टिक कर दें, अगर आपने दूसरा इफेक्ट कर दिया तो आप उसको माइनस कर दें, ये उसका तरीका होता है। यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में से अगर आपने एक इफेक्ट कर दिया तो उसे टिक कर दें, और सेकंड इफेक्ट जब आप करते हैं क्रॉस कर दें, तो क्रॉस जब कर देंगे इसका मतलब है आप उसके दोनों इफेक्ट जो है वो हो चुके हैं ऑलरेडी। सही। तो ये 11,000 का आपका बेसिकली लॉस आ जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे 11,000 का आपका नेट लॉस आ रहा है। लॉस लिख देते हैं या लॉस फॉर द ईयर भी लिख लेते हैं, आजकल लॉस फॉर द ईयर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसकी पिक्चर लेनी है आप पिक्चर ले लें, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। अब मसला तो बताएं। सर ठीक। जी, तो ये हमने पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, म्यूजिन 12-22 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगर आप देखें तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये आपने घर में खुद करना है। अक्टूबर नवंबर 12-23 का क्वेश्चन है। You will do it at home on your own. You will prepare manufacturing account and income statement so that you may be able to understand the concepts easily. ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये, इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या क्या मंगा हुआ है। मई जून 10-22 का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सर जो मैंने करना है वो कौन से साल का? मैं बताता हूँ। जी, तो आपने करना है, एक तो आपने करना है, ये क्वेश्चन है मई जून 10 का, मई जून 10-22 इसमें से है, ये याद रखिएगा, मई जून 10-22 का क्वेश्चन है। सर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे इसके कोड्स? मई जून 10-22 मैंने बताया, और दूसरा है आपका 10 मई जून 10-22, दूसरा है अक्टूबर नवंबर 12-23। और अक्टूबर नवंबर 12-23। मैं जून 22 10 और दूसरा मई जून नहीं नहीं, मई जून 10-22 है और अक्टूबर नवंबर 12-23 सामने लिखा हुआ है आपके, ये देखें। अक्टूबर नवंबर 12। अच्छा मैं 10 समझ सही। ये दो करने हैं। जी, अब 10 है, मई जून 10-22 इसमें कुछ सर ये क्वेश्चन के नंबर्स क्या हैं ये भी बता देना। क्वेश्चन 1 ही होता है बेटा। क्वेश्चन 1 दोनों के। जी, अच्छा क्वेश्चन मई जून 10-22 में जरा देखिएगा, कुछ चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर लें। नंबर 2 पॉइंट देखिए, उसने लिखा है ऑल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज टू बी 25% ऑफ कॉस्ट। डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, लेकिन कॉस्ट पे कैलकुलेट करनी है, और उसमें जो हमें फैक्ट्री नॉन करंट एसेट्स दिए हैं, नॉन करंट एसेट्स अलग अलग दिए हैं। 2800 का ले लेंगे हम, 20% 560 आ जाएगा। 952 का ले लेंगे 20%, वो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 25%। 28,000 which had been charged to manufacturing wages should have been charged to office salaries। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में से 5,48,000 है, उसमें से आपको 28 माइनस करना पड़ेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। 548 में से 28 आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपको लिखनी पड़ेंगी 528 की, और जो ऑफिस सैलरीज हैं इसके अंदर आप ऐड कर देंगे 28, क्योंकि वो हिस्सा ऑफिस सैलरीज का है और उसको ऑफिस सैलरीज में आपको लिखना पड़ेगा, और वो अब आप लिखेंगे कितने की, 222। ये लिख ले जरा, आपको समझ आ जाए कि हमें इसको कैसे डील करना है।
मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में गलती से आपने 28 ऑफिस सैलरीज के डाल दिए थे, यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. सो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इज गोइंग टू बी written with 528 and office salaries will be shown 194 plus 28, 222 is going to be the office salaries. Okay. ओके सर. नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अगर आप देखें तो बैड डेट्स दी में 14,000 के, उसके बाद है द प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 6,000. यहाँ भी प्रोविजन रिड्यूस हो रही है. बैड डेट्स वो भी आपके एक्सपेंसेस में आएंगे और प्रोविजन 6,000 की आप जीपी में ऐड कर देंगे. प्रोविजन कैलकुलेट नहीं करनी है आपने, तो सिंपल है, 14,000 आपके एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे और प्रोविजन में आप 6,000 ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे. आई रिपीट अगेन, 14,000 आप एक्सपेंसेस में, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में लिखेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट में 6,000 या 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, because it is given in the question that the provision for outflow is to be reduced by 6,000. तो सर अगर इंक्रीज होती तो हम माइनस करते ग्रॉस प्रॉफिट में से. हाँ, वो तो मैंने इसीलिए पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के पहले लेस इंक्रीज इन प्रोविजन आपको लिखवाया था, इसी बेसिस के ऊपर. यहाँ पर याद करें कि नॉर्मली तो इंक्रीज ही हो रही होती है ना, तो वो लेस होती है एक्सपेंसेस में, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होती है क्योंकि 2,000 की हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी, प्रोविजन जो रिक्वायर्ड को थी 1200, इसलिए हमें डिक्रीज करनी पड़ी थी 18%. यहाँ तो उसने बता ही दिया कि डिक्रीज करनी, 6 से डिक्रीज करनी, तो 6 हम जीपी में ऐड कर देंगे. क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. मार्क स्कीम भी आप देख सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है अगर आप देखना चाहें तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इसका ईयर तो नहीं दिया हुआ, शायद दिया हो जी, मई जून 1421. मई जून 1421, इसको देखते हैं जी हम. मई जून 1421, ये भी सॉल्व करना है घर पे जी. 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया आपको घर पे, ये हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है. ओके. कहते हैं शैन लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 दिसंबर. इन्वेंटरीज दी हुई है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. परचेजेस दी हुई है, रॉ मटेरियल की परचेज भी दी हुई है, फिनिश गुड्स की परचेज भी दी हुई है 150. कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है. फैक्ट्री पावर, और फैक्ट्री पावर कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सारे के सारे. फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट दी हुई है, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट दिया हुआ है. प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस क्या है हमारी बेटा, फैक्ट्री वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस है. इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको. इन्वेंटरीज क्लोजिंग दी हुई है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स की रेंट प्रीपेड दिया हुआ है और एक्सपेंसेस वर एलोकेटेड. इलेक्ट्रिसिटी 2/3 फैक्ट्री में जाएगा, 1/3 ऑफिस में जाएगा, और रेंट जो है जो कि प्रीपेड भी है वो 3/5 फैक्ट्री में जाएगा, 2/5 ऑफिस में जाएगा. मोटर व्हीकल वर यूज सोलली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स. मोटर व्हीकल पर जो डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे वो एक्सपेंसेस में लिखी जाएगी आपकी, और फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में जाएगी, जो कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पर कैलकुलेट करनी है आपने. फैक्ट्री मशीनरी की 20% ऑन कॉस्ट है और मोटर व्हीकल की 10% वो भी ऑन कॉस्ट है, लेकिन एक एक्सपेंसेस में जाएगा और एक फैक्ट्री में जाएगा. जी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, इसका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बना के दिखाऊंगा आपको. आई वोंट गो फॉर द अदर अकाउंट्स, that is not needed actually. इसका बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. साइन आ जाएगी जी आपके. स्टार्ट हम किससे करते हैं जी, आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल से. यहाँ पे क्या आ जाएगी, रॉ मटेरियल ओपनिंग. वो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है जी, हम देख लेते हैं. रॉ मटेरियल ओपनिंग हमें क्वेश्चन में दी हुई है जी 80 की. मैं 0 कैंसिल करके ले रहा हूँ, उससे मेरा क्वेश्चन जरा इजी हो जाएगा सॉल्व करना. रॉ मटेरियल ओपनिंग में ले रहा हूँ 80.
मैं ऐड कर दूंगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखिएगा इसमें कैरेज इनवर्ट भी दिया हुआ है, तो कैरेज इनवर्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगा रॉ मटेरियल परचेज में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो आपको दिया हुआ है, शायद पीछे दिया होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है इधर परचेजेस में 780 का, उसमें कैरेज इनवर्ट ऐड कर दूंगा मैं 128 का। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 780 का है, उसमें 128 में ऐड कर दूंगा कैरेज इनवर्ट। अलग से लिख भी सकते हैं आप, अगर आप अलग से लिख लें तो गलत नहीं होगा, वो भी ठीक है। 780 प्लस अच्छा सर, तो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो कौन सा सॉल्व किया था? 908 मैं बताता हूँ, वो मैं भेज दूंगा आपको, वहां से देख लीजिएगा मेरा, ठीक है, अभी भेज दूंगा। इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग। रॉ क्लोजिंग हम देखते हैं कितना दिया हुआ हमें, नीचे दिया हुआ है रॉ क्लोजिंग 112 का, ये दिया हुआ है 11200 कैंसिल करके मैं ले रहा हूँ ताकि मेरा आंसर जो है वो मैं इजीली इसको सॉल्व जो है वो कर सकूं। इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जी। 80 प्लस 908 माइनस 112, 876 आपका आ जाएगा मटेरियल यूज। मटेरियल यूज का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा जी 876, दैट इज आवर मटेरियल यूज। इसमें हम ऐड कर लेंगे जी डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हो आप। डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे किस नाम से देंगे बेटा, वही नाम यूज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे कि उस नाम से भी आ सकती हैं, प्रोडक्शन वेजेस। कितनी दी हुई है, अगर कोई एक्रूड होती तो मैं ऐड करता उसमें। प्रोडक्शन वेजेस दी हुई है मुझे, ये दी हुई है 480 की, अगर एक्रूड होती तो मैं इसमें ऐड करके लिखता, एक्रूड नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लूंगा। पिछले किसी क्वेश्चन में भी एक्रूड नहीं आई। इसके अंदर एक नई चीज करनी है आपने कामिल, वो है ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो हमें क्वेश्चन में दिए हुए, वो क्या है, पावर, फैक्ट्री पावर दी हुई थी, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी आएंगे प्राइम कॉस्ट से पहले। फैक्ट्री पावर डायरेक्ट लेकिन वो सर हीट, जी हीट जी, में नहीं आएगा, रेंट एंड हीट। नहीं वो प्राइम कॉस्ट से पहले आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने एग्जांपल दी थी आपको रॉयल्टीज की, लाइसेंस फी की, हाँ 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 हाँ, यस सर। वो एक्सपेंसेस से पहले आता है, प्राइम कॉस्ट से पहले आता है, लेकिन हम लिखते हैं इसको इस तरीके से ही है। प्लस 88, आपका आंसर आ जाएगा 1444 एंड दैट इज बेसिकली योर प्राइम कॉस्ट। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, प्राइम कॉस्ट को बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं, इनिशियल कॉस्ट भी कहते हैं। ऐड कर देंगे जी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये आपको पता है हेडिंग हम यूज करते हैं इसकी, फैक्ट्री ओवरहेड्स की। फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए मेरे भाई आपको, अगर हम गौर करें तो एक तो आपको दी हुई है जी फैक्ट्री एक्सपेंसेस 56 के, वो लिख लेते हैं। के उसके अलावा देखते हैं रेंट है, इसको आपने पोर्शन भी करना है, और रेंट कितना दिया हुआ हमें 326 का, और रेंट प्रीपेड भी है 26 का। क्या करेंगे जी, रेंट हम लिखेंगे, प्रीपेड का मतलब है आपको माइनस करना पड़ेगा ना, सारी बात है। 326 माइनस 26 जाएगा 300, इसका फिर कितना है जी आपका इंटू, कितने कितना फैक्ट्री में जा रहा है, 3/5 रेंट का जो है फैक्ट्री में, 3 डिवाइडेड बाय 5, 300 का 3 डिवाइडेड बाय 5 निकाल लेते हैं हम, आ जाएगा 180 रेंट का फैक्ट्री में चले जाएगा। बाकी जो है 120 वो ऑफिस एक्सपेंस में जाना है, सारी बात है। फिर आपका आ जाती थी इलेक्ट्रिसिटी, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट वगैरह उसका नहीं दिया हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 138 का, और उसका 2/3 जो है वो कह रहा है कि फैक्ट्री में जाएगा, ये लिखा है 2/3 फैक्ट्री में जाएगा। 138 का 2/3 जो है वो फैक्ट्री में जाएगा, 138 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, एंड डेफिनेटली जो 1/3 है उसका वो ऑफिस में जाएगा, ऑब्वियसली बात है। 2/3 जो है आपका आया था 92, बाकी 23 जो है वो आपका ऑफिस में चले जाएगा। उसके बाद जी
जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये तो नहीं आएंगे, ये तो ऑफिस के एक्सपेंस है, ये तो सारी बात इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। ठीक है जी। अब आ जाएगी डेप्रिसिएशन जो लेनी है आपने किस पर, फैक्ट्री मशीन की, 25% है कॉस्ट पे होगा जी। और फैक्ट्री मशीनरी 25% है कॉस्ट का। कॉस्ट कितनी दी हुई है मशीनरी की, 160। 160 का 25% कितना आता है जी, 40 आ जाएगा आपका। ये डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी आपकी आ जाएगी। और जो ऑफिस की दी हुई आपको वो आपकी यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, हम देख लेते हैं जरा। फैक्ट्री मशीनरी यहाँ आएगी। मोटर व्हीकल की जो 140 है उस पर जो आप 25% लेंगे वो यहाँ पे शो नहीं करेंगे। अच्छा, फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन यहाँ 20% है, मैंने गलती से 25% ली है, तो उसको ठीक कर लेते हैं। Because that is 20%। 20% इसका हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये हम ऐड कर देते हैं जी, टोटल कर लेते हैं। हमारा 56 प्लस 180 प्लस 92 प्लस 32, 360 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। ये हम ऐड कर लेंगे तो आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, मतलब कि 360 प्लस 1444, 1804 आपकी आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। 1804। इसमें हम ऐड कर देंगे जी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। कर देंगे जी वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितनी है हमारी। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें पीछे दी हुई है जी, वो है 110 की और क्लोजिंग है 146 की। ओपनिंग हम ऐड कर देंगे जी 110, क्लोजिंग माइनस कर देंगे 146, 110 माइनस 146, 36 नेगेटिव में आ जाएगा आपका, जो आप यहाँ से माइनस कर देंगे आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। बस में एक पॉइंट नया जो है जिस पे आपने फोकस करना है वो बेसिकली ये है कि आपको इसमें परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी दी हुई है। बेटा परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी इनकम स्टेटमेंट में आपको लिखनी पड़ेगी, यानी 1768 ये आपका आंसर आ गया। यानी जब आप सेल्स लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 1768, सेल में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऐड करेंगे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी और जीपी आएगा। इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आप गौर करें तो आपको सेल्स दी नहीं है। जब सेल्स ही नहीं दी हुई डेफिनेटली आप इनकम स्टेटमेंट जो है वो नहीं बना सकते। इसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं बननी थी, बस इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनना था। लेकिन तो अगर इनकम स्टेटमेंट बनती तो ये जो आपकी लिखी हुई है परचेजेस रॉ मटेरियल की, जो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स हैं, ये 150 की आपकी बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होकर आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखनी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग में जी। मैं यही पूछ रहा था कैसे लिखते हो सेल्स को जी। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब कल थोड़ा इससे मुश्किल क्वेश्चन में जाएंगे, तो मैंने होमवर्क दिया वो आपने करना है घर में, ऑब्वियसली यू नीड टू सॉल्व इट इन अ बेटर वे। और ओके ये क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट हम मैं करवाऊंगा आपको। और कोई मसला है तो बताएं, एनी प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर? नहीं फिलहाल तो क्लास कितने बजे करना चाह रहे थे, मुझे कुछ याद नहीं है कल की क्लास का। फ्राइडे की जी हमने डिस्कस किया था ना पाकिस्तान टाइमिंग का 11:30 to 12:30 11:30 से 12:30 का किया था। जी। ठीक है, 12:30 पे अगर मैं, ठीक है
चलें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलते हैं। ठीक है जी। ओके ओके ओके।